بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يا أيها ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. آنریبل چیف منسٹر جموں و کشمیر ہمارے سامنے آتی تھی تو وہ دل میں سما جاتی تھی. ان کی زندگی کا جو آخری وہ وہاں پہ موجود تھے تو مجھے ان کو جاننے کا موقع ملا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. ترجمہ: اے ایمان لے کر ہو اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر بابا صاحب، MLA بہو مجید لادنی صاحب، MLA جموں ویسٹ سراج شاہین صاحب، MLA بانیہال رمن بھلا صاحب، ورکنگ پریزیڈنٹ کانگریس حاجی عبدالحمید چودھری صاحب، پیٹرن ان چیف گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ حاجی ارشد علی چودھری صاحب، چیئرمین گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ، یہاں پہ آئے ہوئے مسعود چودھری صاحب کے خاندان کے تمام ممبران، معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور آداب. ویسے تو پروگرام کے مطابق پہلے فاروق صاحب نے بولنا تھا، پھر میں نے، لیکن میں کبھی سرکاری فنکشن کو چھوڑ کے کبھی کسی پروگرام میں فاروق صاحب کے بعد بولتا نہیں ہوں. اس لیے پہلے میں اٹھا، ان کے بعد میرے بعد پھر فاروق صاحب اٹھیں گے. اور کچھ ریسرچ پیپر ڈیٹیل اگلے 1-2 سال میں ہم تیار کر سکیں. یہاں پہ ابھی میرے ساتھی ٹرائبل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیوں نہ اس پہ ریسرچ کہ واقعی جہاں ٹرائبل یونیورسٹیز ابھی تک قائم ہوئی ہیں ان کا کتنا فائدہ ہوا ہے، اور اگر یہاں ٹرائبل یونیورسٹی قائم ہوتا ہے تو ٹرائبل یونیورسٹی ہم کامیاب کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ ہم پہلے ہی جو ہے تیاری کریں، تاکہ جس دن وہ یونیورسٹی چلنا شروع ہو جائے پہلے دن سے اس کا فائدہ جو ہے یہاں کے ٹرائبل لوگوں کو ملے. تو یہی میں اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس امید کے ساتھ کہ مسعود چودھری صاحب نے یہ ادارہ جو ہے یہ قائم کیا ہے. اور جیسے صحیح کہا ہمارے ایک ساتھی نے، یہ ایک ہی مسعود چودھری صاحب تھے، دوسرے ابھی آئیں گے، لیکن جو انہوں نے چھوڑ کے ہمیں دیا ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں، اس کا قوم جو ہے پوری طرح سے فائدہ لے، اس سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے بدل جائیں. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ بہتر طریقہ انہیں خیرات عقیدت پیش کرنے کا یہی ہوگا کہ جس مقصد سے انہوں نے یہ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ قائم کی ہے اس مقصد کو جو ہے ہم اپنے ہاتھوں سے پورا کرتے ہوئے دیکھیں. یہی امید رکھتے ہوئے میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور آپ کے ساتھ یہ چند لمحے جو ہے گزارنے کا موقع ملا. اور اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں. بہت بہت ہدایت ملی ہے کہ کم سے کم وقت میں جو ہے میں اپنی بات مکمل کر لوں، اس لیے جو لمبی تقریر میں نے تیار کی تھی وہ لمبی تقریر ہم اسمبلی میں اکثر کہتے ہیں اس کو پڑھا ہوا تصور کیا جائے، تو جو لمبی تقریر میری ہے اس کو پڑھا ہوا تصور کیا جائے. میں چند 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں. آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں، مسعود چودھری صاحب کی 3ری برسی
मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, खासकर अपनी पहली हुकूमत में जब मसूद चौधरी साहब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, पहले वाइस चांसलर थे। और उसके बाद मेरी खुशकिस्मती थी कि एज चांसलर उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की जो डिग्री बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई, उस वक्त मैं मौजूद था स्टेज पे, और आज वो लम्हा जो है मुझे याद करने का मौका मिला तस्वीरें देखते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां मसूद चौधरी साहब की जिम्मेदारी रखी गई, उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, चाहे वर्दी पहन के या वर्दी जब उनकी छुट्टी गई और जब वो रिटायर हुए तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हैसियत से, और यहाँ पे जो गुजर बीच चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत उन्होंने की, उसके साथ मंसूर का उन्होंने यहाँ पौधा लगाया। हमेशा उन्होंने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे और जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवाल कौम है वो भी इस तरक्की में पीछे ना रहे। अब विरासत उन्होंने हमें छोड़ के ये दी, ये इदारा बना है, ये स्ट्रक्चर बना है, ये बिल्डिंग बनी है, यहाँ लोग हैं। अब इससे आगे अभी तक जो भी बना उनके हाथों से बना, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, कल्चरल सेंटर। अब जब तक इस पूरे सिस्टम का कौम से फायदा ना मिले, तब तक शायद जिस मकसद से मसूद चौधरी साहब ने ये बनाया गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, शायद वो मकसद पूरा होगा। और मैं चंद एक दो सजेशन मशवरे आपके सामने रखूं, तो उसके बाद अरशद चौधरी साहब तक है कि वो इनको कैसे आगे लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। और इसका काफी हद तक खमियाजा जो है गुजर बकरवाल कौम को जो है भुगतना पड़ रहा है। आप देखें, सियासत में एक तरफ रखते जो जम्मू कश्मीर में आज मौसम के हालात बदल रहे हैं। अब पिछले साल आपने देखा है, इस साल कितनी जगहों पर बादल फटे, तेज बारिशें आई, जम्मू में सैलाब हुआ। ज्यादातर अगर पहाड़ी इलाकों में या जम्मू के आसपास, दरिया के आसपास अगर नुकसान हुआ तो इस कम्युनिटी का हुआ। क्यों ना अब इस गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत एक अच्छा खासा रिसर्च सेंटर, जो कि रिसर्च पेपर्स, मतलब ये नहीं कि एक पेज पर 4 पैराग्राफ लिखते, बल्कि डिटेल्ड रिसर्च पेपर्स, 2-3 इश्यूज गुजर कम्युनिटी को लेकर, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज का असर गुजर कम्युनिटी पे, खाना बदोश लोग जो अपना माल मवेशी लेके गर्मियों में ऊपर जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, जो मौसम के बदलते हुए तरीकों से इस कौम पे असर पड़ रहा है, उसका आगे जाके इलाज क्या होगा, इन्हें हम बचा कैसे पाएंगे। गवर्नमेंट के पास स्कीमें हैं, जावेद ने वो स्कीमें गिनी, लेकिन वो स्कीमें जो है सबके लिए, अलग इस कौम के लिए जो ये मुश्किल का जो हम सामना कर रहे हैं, इससे हम कैसे बच पाएंगे, उस पर आप सोच सकते हैं। यहाँ रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई, तालीम के हवाले से बात हुई, बिल्कुल सही है। गुजर हॉस्टल भी बने, गुजर एडवाइजरी बोर्ड भी बना, मोबाइल स्कूल्स भी चले, कोशिश हुई कि गुजर कौम को जो है तालीम मिले, रिजर्वेशन का भी सिलसिला चला। लेकिन कितना फायदा इस कौम को रिजर्वेशन से मिला, कभी हमने वो समझने की कोशिश नहीं की। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रिजर्वेशन का असर कितना गहरा, मतलब कहां नीचे तक गया, कितना हम इसको फैलाने में कामयाब हुए। तो क्यों ना एक रिसर्च पेपर रिजर्वेशन और रिजर्वेशन का फायदा पूरी कौम को किस तरह मिल सकता है उस पर हम करें, ताकि आगे जाके कोई भी हुकूमत जो है सब कुछ नहीं जानती। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं सब कुछ नहीं जानता,
मुझे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और समझने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि रिसर्च पेपर्स वो लोग तैयार करें जो इन चीजों के बारे में जानते हैं। ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, यहाँ अक्लमंद लोगों की कमी नहीं है। अल्लाह के फजल से यहाँ पे रिटायर्ड अफसर, सर्विंग ऑफिसर, वकील, फिलोसोफर, टीचर, स्कॉलर सब यहाँ पे मौजूद है। जाके न चुके, हम लोग कोशिशें करते हैं कि जो ऊपर आ गए वो दूसरे को उठने की कोशिश नहीं करता, उसको उठाना नहीं चाहता। वो समझता है जितना ये नीचा रहेगा उतना ही मैं ठीक रहूंगा, मगर वो सही नहीं है। हमारा फर्ज है उसको भी उठाना है जो अभी भी नीचे है। और जब तक हम ये नहीं करें, हम लोग कभी भी डॉक्टर मसूद साहब की उन तमन्ना उनको पूरा नहीं कर सकते, उनके ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते, शेर कश्मीर का ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। मेरी माँ जो गुजर खानदान से आती थी, मेरी नानी जो थी वो टोटल गुजर थी, वो कुछ अंग्रेजी वगैरह नहीं जानती थी, गोजरी में बात करती थी, मगर उम्मीदें थी मेरी माँ कि ये कौम उठे, और उससे जितना उससे हो सका उसने कोशिश की। और अल्लाह का शुक्र है आज तब भी मैं देखता हूँ कि हमारे लोग कहाँ पहुंचे, मगर अभी मंजिल बहुत दूर है। उस मंजिल को तय करने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इकट्ठे होते। ये नहीं समझा सिर्फ गुजर मुसलमान है, गुजर हिंदू भी है, अक्सरियत में वो है। और इसलिए जब तक हम लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक और मजहबी एकजाती नहीं करेंगे, न मुल्क तरक्की करेगा न हम तरक्की करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि नफरतों को हम फेंक दें। मैंने कम जुल्म नहीं देखा, मैंने लोगों के घर उजड़ते हुए देखे, और सबसे बड़े जो जंगल को प्रोटेक्शन करने वाले हैं वो गुजर है, बकरवाल, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी से हमारी जो है खुराक निकलती है, हमारे मवेशी पलते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जंगल मिट जाए और वो खत्म हो जाए। जब हमने मेरे वालिद के वक्त में स्कूल शुरू किए, जब ये लोग माइग्रेट करते हैं ऊपर के इलाकों में, उस्ताद साथ भेजे, मगर मैंने वो जमाना भी देखा जब उस्ताद उनसे अपना काम कराते थे और जो उनका काम था उनको पढ़ाना नहीं पढ़ाना। वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे MLA हजरात, परवेज राणा साहब, मसूद चौधरी साहब के खानदान के अफराद, और आप सब, क्योंकि नमाज का वक्त आने वाला है, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिर ये कहूंगा कि वो जो कर सके कर दिया। उमर साहब ने भी आपके सामने आपके लिए अगले कदम का आगाज कर दिया, मगर मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा, आज भी यह कौम बहुत गरीब, इनका वारिस कोई भी नहीं, अल्लाह के सिवा। इन पे जो मुसीबतें रोज आती हैं उसका मैं यहाँ पे बयान नहीं करूंगा, मगर है शिद्दत की। जब तक आप लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं रखोगे आपस में, जब तक एक ग्रुप नहीं होंगे, कभी आपकी ताकत नहीं बनेगी, याद रखिएगा। उसको पहले कायम करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, सबसे बड़ी चीज जो है, तालीम की तरफ अपने बच्चों को ले जाएं। अगर तालीम नहीं होगी तो आप किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकते। हमारे बच्चे फिरते रहते,
कोई काम नहीं करते जब तक वो अपना मुस्तकबिल खुद नहीं बनाएंगे, कोई उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए तैयार नहीं। सही कहा यहाँ पे बहुत किया गया मगर फिर भी काम अभी बहुत करना है। और मैं आपका मशकूर हूँ जावेद राना साहब कि आपने मुझे यहाँ बुला के सदारत दी। जितना मुझसे हो सका था मैंने किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे आप मेरी तारीफ करें, नहीं, क्योंकि अल्लाह के सामने मैंने जवाब दिया है। इस कुर्सी पर जब इंसान बैठता है उससे हर एक के लिए नेकी करे, उससे ये नहीं देखना इसका मजहब क्या है, ये किस जमात से है, क्या है। उसको ये देखना है कि अल्लाह ने आपको इस कुर्सी में बिठाया है तो आपके लिए सब बराबर हैं और सबके लिए कोशिश करनी है कि उनको मुश्किल से निकालें। ये रियासत मुश्किल दौर से गुजर रही है, ये हुकूमत एक तलवार की धार पर चल रही है। इसलिए जब तक हम लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं रहेंगे हम लोग कामयाब नहीं। नजर रखें, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। आप भी देखिए जो आपके गुजर हॉस्टल हैं, जो आपके गुजरों को तालीम दी जा रही है, क्या वहां पे है उस्ताद है पढ़ा रहा या नहीं पढ़ा रहा, उन हॉस्टलों की हालत क्या है, उस तरफ तवज्जो दीजिए और अपने दीन को मजबूत, बच्चों को कुरान और नमाज की तरफ ले चलें। जब तक वो इस तरफ नहीं चलेंगे वो स्थान नहीं बनेगा। दीन जो है रास्ता दिखाता है, नफरत का रास्ता नहीं, मोहब्बत का रास्ता है, उसको पैदा करना बहुत जरूरी है। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूं कि आप तशरीफ लाए और बार बार आए, और मुझे खुशी है कि जावेद राना साहब ने अच्छी बात कहा कि लोग सेक्रेटेरिएट नहीं आ सकते, मुश्किल हो जाता, पहले वहां घुसना ही मुश्किल होता, इसलिए वो अब यहां भी वक्त दें जिसमें आपके लोगों को सुन सके, उनकी मुश्किलात का उजाला करने की कोशिश करें। मैं मुबारक करता हूँ और उमर साहब का भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला कि वो यहाँ तशरीफ लाए, और मुझे उम्मीद है तो आपके लिए अच्छा करेंगे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जम्मू का हो, कश्मीर का हो। ये जो रोज रोज चिल्लाया करते हैं लोग जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई मोहब्बत नहीं, गलत है, उस गलतफहमी को निकालिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी ये नहीं सोचा कि जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है। एक आंख जम्मू है और एक आंख कश्मीर है। और ये करना तुमसे मैं कहना चाहता हूं, मैं वज़ीर आज़म था, मेरे पास अपर हाउस में 8 सीटें थी, मैं सब कश्मीर को दे सकता, मैंने 6 सीटें अपर हाउस की जम्मू को दी, कश्मीर को सिर्फ 2 सीटें। इसलिए अगर हमने मोहब्बत पैदा करनी है तो उसका शुरुआत हमने दरबार मुंह से किया। उस दरबार मुंह में जम्मू को बिठा दिया था और हमने सोचा दरबार मुंह महाराज साहब पागल नहीं थे, दरबार मुंह सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, इंसान को इंसान के लिए जोड़ने के लिए था कि कश्मीर का मुसलमान जम्मू के हिंदू को समझ सके और जम्मू का हिंदू जब कश्मीर आएगा वो कश्मीर के मुसलमान को समझे। इस मोहब्बत को कायम करना है, इस मोहब्बत को आगे बढ़ाना है। अगर हमने इस रियासत को आगे ले जाना है तो याद रखिएगा एक ही रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता, एकजुहती का रास्ता, उल्फत का रास्ता।